गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। एंड ये पहले भी हो चुका है। एंड मैं फटाफट से इसको बस एक बार एक ब्रशअप एक रिवीजन दूंगी। उसके बाद हम इसके कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ओके। तो अगर मैं इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करूं तो ये स्टार्ट हो गई थी इंडिपेंडेंस से भी पहले। ओके। सो इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया जो है हमारा, ये हमारा कोई आज की प्लानिंग नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हम आज से हमने इसको स्टार्ट कर दिया था। इट हैज स्टार्टेड वे बिफोर व्हेन independence happened, and there were various committees which were formed, and on the basis of those committees only economic planning was done. So economic planning are of various types. First is democratic planning. Democratic planning says that in this type of planning, the economy will be controlled by the representatives of the people. Okay. And it will be completely according to the people's needs. And that is why this is a democratic planning. Then there is this decentralized planning in which overall targets of productions and investments are fixed by the central government and state government and local government, which give them freedom to achieve their targets. Okay. And this type of planning is very much prevalent in countries like France and Great Britain. Okay. इसमें one more thing, center and state, they basically work together. Okay. So something which center has, it is centralized to the state government, and then this planning is being done. All right. Then the next is planning by inducement. This planning is basically when you pursue something. Okay. You use the persuasion to implement certain schemes or project so that you have some induced influence of investment. Okay. All right. Now question arises is कि what is the history of economic planning of India? Because हम आज से तो कर नहीं रहे हैं. It has been done. We have been doing it since a lot of time back. Okay. So just give me 1 second. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग में आपका आ जाता है कि ये कब से स्टार्ट हुआ है. ओके. सो सर विश्वेश्वरा राय ने एक बुक पब्लिश करी थी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, बैक इन 1934. ही वाज द फर्स्ट कंट्री टू एडवोकेट द इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर इंडिया. Okay. And then from that book this idea is basically these spurred ki yes, we need some sort of economic planning in India. Okay. Then towards the end of 1938, National Planning Committee under the chairmanship of Pandit Jawaharlal Nehru was established. Okay. By the then president of Indian National Congress, who was Netaji Subhash Chandra Bose. Okay. एंड वो जो कमिटी बनी थी, देन देयर मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू सेट अप वेरियस कमिटीज सो दैट आगे जाके हम न्यू इंडस्ट्रीज या जो भी हम डेवलपमेंट या कोई भी प्लानिंग करेंगे वो उनके अकॉर्डिंग या उस प्लान के अकॉर्डिंग उस कमिटीज की में उन लोगों को इंक्लूड करेंगे जो हेल्प करेंगे हमें प्लानिंग ऑफ इंडिया के लिए. ओके. नाउ उसके लिए वी हैव लाइक वेरियस प्लान्स विच वर डेवलप्ड. ओके. फॉर एग्जांपल द वेरी फर्स्ट इज बॉम्बे प्लान, जो कि सबसे पहला प्लान बना था. ओके. बॉम्बे प्लान बना था 1944 में. ओके. एंड it was also formed by a group of leading industrialists. Okay. And it aimed at the post independence economic development with a focus of industrialization. Okay. So the main focus was that there will be industrialization, and through that industrialization economic planning will be done. Okay.
So there were various industrialists who were involved in this planning. Okay, उनकी names नहीं लिखी हुई हैं, that let me write here. आप लोग भी साथ के साथ अपनी notebooks में mention कर लीजिएगा स्टार डाल के. Okay, इसमें आपके टाटा ग्रुप के जमशेद जी टाटा जी आ जाते हैं, JRD टाटा. ओके, एंड देन बिरला जी आ जाते हैं, GD बिरला, जो कि बॉम्बे प्लान में ही वो थे, कंट्रीब्यूटर थे. आदेर शाह जी आ जाते हैं, आदेर शाह जी दलाल. ओके, देन लाला श्रीराम. ये सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस टाइम पीरियड के. कस्तूर भाई लाल भाई, एंड देन पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास. पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास. देन देर वॉज वन जो कि हमारे इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, जॉन मिठाई एंड A.D. श्रॉफ. They all were involved in Bombay Plan 1944. Okay, and the main aim was to double the per capita income and national income of the country so that better economic planning can be achieved. Okay, and the total cost of the plan was 10,000 crores, which was supposed to be invested in 15 years. All right, and make people little self sufficient so that further economic planning can be done. ओके, सो एज आई टोल्ड यू कि जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग थी वो इंडिपेंडेंस से भी पहले स्टार्ट हुई थी. सो यू कैन सी कि 1938 से नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी है, बॉम्बे प्लान आया है 1944 में. ओके, एंड देन 1944 में ही हमारे पास आया है, वी हैड नेक्स्ट प्लान विच वाज पीपल्स प्लान. ओके, जो लेट आए हैं अभी, मैं वी आर डूइंग इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया. ओके, तो ये मैं टॉपिक पहले भी करा चुकी हूँ, इसको मैं फटाफट से एक बार रिवीजन दे रही हूँ. एंड ज़्यादा कुछ मिस नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट ही किया है. ऑल राइट, ओके, सो नेक्स्ट इज, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. Okay, ji, next is People's Plan. Okay, and this was a plan which was drafted by M.N. Roy in 1944. Okay, M.N. Roy was a radical thinker and he was a founder of Radical Democratic Party. Okay, so it was not like a Bombay plan. It was a kind of plan which focused on socialism, worker centric, labor centric. Okay, it emphasized on agriculture, small scale industries या democratic socialism के ऊपर. Okay, this was a 15,000 crores plan and it laid emphasis on the agriculture through nationalization of land. Next is Gandhian plan. Gandhian plan was formed by S.N. Agarwal. ऐसा नहीं कि Gandhian plan का नाम आ गया तो उसमें महात्मा गांधी को टिक कर देंगे. Gandhian plan was basically formulated by S.N. Agarwal, who was the principal of the Wardha Commercial College at that time. Okay, and he made this plan based on the Gandhian principles. Okay, जो भी उनकी principles थे, like self sufficiency and helping the people of India through their raw material, through their small scale industries, इन सब के ऊपर. ओके, तो गांधीन प्लान की अगर हम बात करें तो मेनली इट वाज based on economic philosophy of Gandhiji, and he focused on self-sufficient villages, decentralized governance हो गया आपका, rural upliftment हो गया, इन सब के ऊपर था. Okay, the plan was for 3,500 crores and this plan was formed. Next is your Colombo plans. Colombo plans was basically a regional intergovernmental initiative. Okay, it was aimed at economic as well as social development in Asia Pacific region
Okay, it was launched in 1950 in Sri Lanka, Colombo. Okay, but it focused overall on the whole Asia Pacific region. Okay, and the plan focuses on capacity building, human resource, technical cooperation among the member countries. Okay, let's go further. अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कि मेन प्लानिंग क्या है। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स बता रखे हैं कि मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे प्लानिंग के। इट फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ सो दैट वी कैन रिड्यूस द पॉवर्टी, मॉडर्नाइजेशन हो सके इकोनॉमी की, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सके, रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटी। ओके, सो let's start with the 5-year plans. So the first 5-year plan was in 1951 to 1956, in which the target growth was 2.1% and actual growth received was 3.6%. So it was a bit successful. Okay, and it was based on the Harry-Domer model. Okay, हैरेडॉमर मॉडल बेसिकली एक ऐसा मॉडल है जिसमें पर कैपिटा इनकम और जितनी भी आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ है उनके बीच में एक रिलेशन निकाला जाता है। ओके, दिस इज अ मॉडल फ्रॉम कीनेसियन इकोनॉमिक्स। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। Okay, so this plan was based on Harry-Domer model, and Harry-Domer model focuses on investment, savings, and economic growth. Okay, and main objective of this plan was to increase the agriculture production and remove the inequalities. Okay, it also focused on the food self-sufficiency and rehabilitation of the refugees. एट दैट टाइम वो इंडो पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था तो बहुत सारा रिफ्यूजी भी थे। ओके, देन देर इज सेकेंड 5-year प्लान। Second 5-year plan was from 1956 to 1961, and target growth rate was 4.5% and actual growth rate was 4.3%. This was also based on Harry-Domer model and PC Mahalanobis model, and it focused on rapid industrialization and heavy industries. Okay. Then there is third 5-year plan. Third 5-year plan was from 1961 to 1966, where target was 5.6%, but it failed due to Indo-China war, and the growth was only 2.8%. It focused on generating the self-generating economy, and it also focused so that there is a medium and small scale industries and cottage industries are encouraged. Okay, but the problem was कि क्योंकि यहाँ पे चाइना एग्रेशन हो गया था और इंडो पाक वॉर भी उस टाइम पे भी चल ही रहा था, तो उस वजह से दिस प्लान फेल्ड। ओके, नेक्स्ट वाज फोर्थ 5-year प्लान विच वाज फ्रॉम 1969 टू 1974। बीच में 1966 से लेकर 1969 तक का जो टाइम पीरियड था उसको प्लान हॉलिडे बोल दिया था। Okay, because at that time war and everything, and then there was this tragedy also, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी डेथ हो गई थी, तो इसी वजह से the plan was stopped. Okay, next was from 1969 to 1974. Target was 5.7% and achieved was 3.3%, and it focused on self-reliance and poverty reduction, family planning programs. Okay, and it was also a kind of that time period जब इंडो पाकिस्तान का वॉर हुआ था तो बहुत सारे बांग्लादेशी refugees were also coming. Then next was
Fifth 5-year plan, 1974 to 1979. Okay, this was by Indira Gandhi's government, and main उनका जो नारा था दैट वाज स्लोगन वाज गरीबी हटाओ. ओके, टारगेट वाज 4.4% एंड दे अचीव्ड 4.8%, सो इट वाज सक्सेसफुल. ओके, देन देयर वाज दिस रोलिंग प्लान फ्रॉम 1979 टू 1980. ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट बीच में गिर गई थी इमरजेंसी की वजह से, तो इट वाज आल्सो कॉल्ड पॉलिटिकल इनस्टेबल पीरियड. ओके, then sixth 5-year plan was there from 1980 to 1985. Okay, target was 5.2% and they achieved 5.7%. And in this time period only, banking system was also made stronger. NABARD वगैरह सब कुछ आपके इसी time period पे आए थे. NABARD हो गया, Exim Bank हो गया, ये सब कुछ. Okay. And this plan also focused on technology productivity, removing poverty, higher growth rate, and reduction of disparities. Then it is seventh 5-year plan, which was from 1985 to 1990. Okay, Rajiv Gandhi के time period पे target was 5% and 6% was achieved. This focused on large scale production of food grains. Okay, it was successful and recorded as highest agricultural production ever. Okay, आपका जो second green revolution आया था वो इसी time period पे आया था. First आया था 1960s के time पे. Then आफ्टर दैट 1990 से लेके 1992, ये 2 years का एक गैप लिया था, फिर से प्लान हॉलीडे लिया था. एंड एट दैट टाइम इट वाज द प्लान ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. So that is why at that time there was no planning which was done at that time. So next was eighth 5-year plan, which was done from 1992 to 1997. Target was 5.6% and achieve was 6.8%. It was PV Narasimha Rao leadership at that time. So fiscal and economic reforms were done. Then side by side, India also faced many major financial crises, so they were also curbed. And the economy was opened up. Liberalization happened, privatization happened, and globalization happened at that time. So it was overall a successful time period. Then it was ninth 5-year plan from 1997 to 2002. Target was 6.5% and achieved was 5.4%. This plan focused on the extension of the eighth 5-year plan only. जैसा 8 था उसी का ही copy था. And it focused on growth with equity. Agriculture focus was there, social sector development was there, all these things was there. Okay, and then इसमें public health committees वगैरह establish करी गई थी, so that there is a proper public infrastructure which could be made, health infrastructure, so that it could be made. Okay, then it was 10th 5-year plan. 10th 5-year plan was from 2002 to 2007. Okay, this was a kind of plan which focused on human development, जिसमें faster GDP growth के बारे में discuss करते थे. And they focused on reducing the poverty, sustainable allocation of the resources, providing basic education, health, drinking water and sanitation. ओके, नेशनल लिटरेसी मिशन भी आपका इसी टाइम पे आया था. एंड टारगेट वाज 8% एंड दे अचीव 7.6%. रह गया था थोड़ा, बट स्टिल इस टाइम पीरियड पे बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च हुई थी. ओके, देन 11th 5-year plan 2007 to 2012. 9% was the target and 8% was achieved. 11th plan focused on the theme of towards more inclusive growth and more sustainability and more sufficiency was introduced. Then this plan focused on the, sorry, just give me 1 second.
Okay. This plan focused from 2000 to 2012, and they focused on the faster and inclusive growth. इसमें मेन था that agriculture, infrastructure and education sector should be the key concern of this plan. There were 27 national target, okay, like literacy, health, child development and poverty, and which was being discussed over here, and that is why this plan was overall being framed. Okay, इसमें फिर 30,000 मेगावाट्स की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को भी इंक्रीज करने की बात हुई थी. Then to increase the green forest cover in India, emission intensity of GDP उसको भी reduce करने के लिए, यानी carbon emission. Okay. Then to enhance the rural areas, complete the eastern and western freight corridors, पूरा infrastructure develop हो, highways बने, providing electricity, rural electrification के ऊपर बात हुई थी. Then increasing the infrastructure investment in GDP by 9%, and increase the gross irrigated area from 90 million to 103 hectare million, connecting all villages with the roads. Okay. And national और state highways को भी properly बना सके. Then healthy drinking water, providing 90% household with banking services, and by the end of this period काफी ज्यादा banking sector strong भी हो गया था. Then providing the subsidies in welfare also. And one thing was also happening over that time was कि ये जो time period था, ये जो हमारा जो 12th 5 ईयर का प्लान था, जिसमें हमने 2012 से 2017 की बात डिस्कस करी है, इस टाइम पीरियड पे एक्चुअली गवर्नमेंट ऑल्सो चेंज्ड. सो 12th 5 ईयर प्लान वाज द लास्ट 5 ईयर प्लान, एंड उसके बाद द प्लान्स वर स्टॉप्ड एंड नीति आयोग वाज मेड. Okay, so next was Niti Ayog, was formed by Modi government, and they focused on rolling planning. आगे की जैसे 5 या 7 या 8 साल की इकट्ठी वाली planning. All right. So in January 2015, Government of India replaced the Planning Commission with Niti Ayog, and they initiatives that were taken place were regarding the 3 years agenda, 15-year vision, and 7-year strategies. Okay. So Niti Aayog also focused on program framework, fostering corporate federalism, providing advices, encouraging partnership between the key stakeholders, investment, progress and efficacy इन सब के ऊपर. ओके, सो ये था पूरा आपका इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड. ये क्लास एक्चुअली पहले भी हो चुकी है. ठीक है, ये एक नॉर्मल रिवीजन क्लास थी. आप चेक कीजिएगा, आई थिंक 14 फरवरी की क्लास हुई की है, जिस दिन मैंने क्लास ली थी. अब इसके कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने इसमें एमसीक्यूज नहीं करवाए थे. ओके, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट. आई विल बी रीडिंग आउट द क्वेश्चंस, एंड आप लोग इनबॉक्स में ABCD जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको आप लिख सकते हैं. देन वी विल चेक कि आपके कितने ठीक है, कितने गलत है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया? Reducing fiscal deficit, achieving balanced growth development, encouraging foreign investment या privatization? B, achieving the balanced regional development. Okay, next.
द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लानिंग इन इंडिया वॉज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? एक कंट्री है हमने जिससे ये 5 ईयर प्लानिंग की जो चीज थी वो उसको उठाया था। यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस, जर्मनी, कहाँ से? बी, वेरी गुड। यूएसएसआर एक्चुअली, फ्रॉम यूएसएसआर ओनली वन, ये सभी कंट्रीज ने ही वहीं से ही उठाया था। पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ये दे ऑल बेसिकली फोकस्ड ऑन 5 ईयर प्लानिंग्स। देन विच 5 ईयर प्लान was terminated 1 year before its completion? सेकेंड 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान और नाइन्थ 5 ईयर प्लान? इमरजेंसी के टाइम का जो टाइम प्लानिंग था। इट इज सी, सी, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। Okay, fifth 5 year plan, which was from 1974 to 1979, okay, was terminated in 1978 by Janata Party government, and it was replaced by rolling plan by Morarji Desai. Okay, fourth question, 1965 वाला तो प्लान प्लान पूरा हुआ था, लेकिन उसके बाद प्लान हॉलिडे हो गया था। ओके, तो जो थर्ड प्लान की आप बात करें ना, वो पूरा 1966 तक चला है, लेकिन उसके बाद 1966 से लेके 1969 तक प्लान हॉलिडे रहा है, क्योंकि उस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी, चाइना वॉर भी था और पाकिस्तान वॉर भी था, लेकिन प्लान पूरा हो गया था। ये प्लान तो बीच में से रुक गया था ना, 4 ईयर तक चला, उसके बाद फिर रुक गया था। ओके, fourth question, who is considered as the architect of the India's first 5 year plan? PC Melanobis was the architect of the second 5 year plan. तो PC Melanobis नहीं है, मेनली फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात हो रही है, तो इट वाज जवाहरलाल नेहरू जी। ओके, बिकॉज नहीं, पीसी मेलानोबिस ने तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो अगर सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात होती तो पीसी मेलानोबिस इसका करेक्ट ऑप्शन होता। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जवाहरलाल नेहरू जी का ही था। ठीक है, इन्होंने हैरेड डॉमर मॉडल से एज इट इज उठा के कंट्री का 5 ईयर प्लान डिजाइन किया था, और ये प्लानिंग कमेटी के प्रेसिडेंट भी थे। ओके, फिफ्थ, द गदगिल फॉर्मूला इज एसोसिएटेड विद विच एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया? गदगिल, एक्चुअली गदगिल फॉर्मूला वाज फॉर्म्ड बाय अ गदगिल कमिटी, ठीक है, जिसमें सेंट्रल असिस्टेंस की बात होती थी स्टेट्स और सेंटर के बीच में, बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द पॉपुलेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होएगा? इट वाज ए, distribution of the financial resources between center and states. Okay, next, which 5 year plan introduced the concept of inclusive growth? इंक्लूसिव ग्रोथ की जब भी बात है, हमेशा आंख बंद करके 11th प्लान यानी कि आपका 2012 से जो पहले का प्लान था, 2007 से लेके 2012, ओके, 11th 5 ईयर प्लान उसमें हुआ था। एंड इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करी गई थी। ओके, सबका विकास, या राइट, 11th प्लान। नेक्स्ट, सेवेंथ क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, रोलिंग प्लान वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द टेनर ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर? कौन से प्राइम मिनिस्टर ने रोलिंग प्लान इंट्रोड्यूस किया था? एक्चुअली रोलिंग प्लान का मतलब है कि 5 ईयर्स की प्लानिंग ना करके 3 ईयर्स, 4 ईयर्स या 5 ईयर्स या 15 ईयर्स की प्लानिंग करना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज वेरी गुड, सी, मोरारजी देसाई। ये इमरजेंसी के टाइम पे जो न्यू गवर्नमेंट आई थी उनका था, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी दोबारा से जीत गई थी, इनकी गवर्नमेंट गिरा के, और फिर वापस से 5 ईयर प्लान्स स्टार्ट कर दिए थे। नेक्स्ट, एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स वर गिवन प्रायोरिटी इन सेकेंड 5 ईयर प्लान? सेकेंड 5 ईयर प्लान में किन को प्रायोरिटी मिलती? एग्रीकल्चर को, हेवी इंडस्ट्रीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, या सर्विसेज को? लड़ाई कर लो, ए या बी। एग्रीकल्चर को फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमेशा मिली है, ठीक है,
फर्स्ट में मिली है, थर्ड में मिली है, लेकिन जब भी हम सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात करते हैं जो कि पीसी मेलानोमिस मॉडल के ऊपर था, वो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर था। तो जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी ये जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आपकी बोकारो स्टील प्लांट हो गई, ये सब कुछ डेवलप ही सेकेंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट ने उनको जमीन वगैरह दी थी, गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडीज वगैरह दी थी, तो ये सब आया था सेकेंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे। Okay, second plan was based on Melanobis model, which focused on the rapid industrialization and growth of heavy industries. Okay, next is the term indicative planning refers to anyone? Indicative planning. हाँ, एक्चुअली इंडिकेटिव प्लानिंग का मतलब होता है वो वाला प्लान जिसमें ग्रोथ रेट को चेक करके, यानी कि जो मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई है उसको चेक करके पूरी गवर्नमेंट की हेल्प से पूरी प्लानिंग करी जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज मार्केट ड्रिवन प्लानिंग विद गवर्नमेंट गाइडेंस। 10th question. The Planning Commission was replaced by Niti Aayog in which year? Although last plan हमारा 2012 से लेके 2017 तक रहा था, लेकिन बीच में ही नीति आयोग भी स्टार्ट कर दिया था। तो कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? 2015। वेरी नाइस। Next, the concept of decentralized planning in India gained prominence under which constitutional amendment? Decentralized planning. It happened under 73rd Amendment. Okay. Okay. The slogan of Garibi Hatao is associated with which 5 year plan? गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम का था। सो कौन सा था वो प्लान? हाँ, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से लेके 1979 तक। ओके, गरीबी हटाओ which focused on the poverty alleviation. 13th question. Which 5 year plan was impacted by the balance of payment crisis in 1991? फाइनेंशियल इमरजेंसी का टाइम पीरियड आ गया था, फिर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन करनी पड़ी थी। तो कौन सा वाला प्लान था वो? इट वाज सेवेंथ प्लान 1985 से लेके 1990 तक का। ओके, गोल्ड मॉर्टगेज करना पड़ गया था हमें इस टाइम पीरियड पे, बैंक्स थोड़े वीक हो गए थे, तो इसीलिए फिर हमें अपनी इकोनॉमी ओपन करनी पड़ गई थी। एंड कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक और चीज भी है, हमने अपनी इकोनॉमी ओपन करी 1990s में, चाइना ने अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी थी 1970s में। इसी वजह से वहां पे प्राइवेटाइजेशन की वजह से थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट थोड़ी ज्यादा हो गई और वो हमसे 15 साल आगे हो गए। नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन। द 20 point program was launched during the tenure of which leader? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या मनमोहन सिंह? 20 point program, 20 point program was, हाँ, इंदिरा। वेरी नाइस ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज इंदिरा गांधी। एंड इट वाज बेसिकली एक एजेंडा था जिसमें पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज इंदिरा गांधी। हैंग हो गया है, एक सेकेंड रुके, मेरा डॉक्यूमेंट हैंग हो गया है। हम्म,
होल्ड ऑन, मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ओके ओके। 15th question, which of the following is not a function of Niti Aayog? Formulating 5-year, cooperative federalism, think tank policy formulation, innovative entrepreneurship. Niti Aayog was not based on 5-year planning. Very good. So the correct option is A. It was not based on 5-year planning. नीति आयोग का मेन वो था कि 3-year प्लानिंग्स हो, 7 years का विजन हो और 15 year की एडवांस प्लानिंग्स हो, ऐसे चलता था। और 8 years की कुछ डेटा कलेक्शन का कुछ हो, ऐसे है इनका। तो 3, 7, 15, 8 इसी मॉडल के ऊपर चलते हैं। कोई प्रॉपर ये नहीं है कि इतने ही साल की प्लानिंग होगी। ओके, ये नहीं है इसका नीति आयोग में। बाकी सब हैं। बाकी दे फोकस्ड ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दे फोकस्ड ऑन थिंक टैंक पॉलिसी, दे फोकस्ड ऑन इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप इंडिया, ये सब कुछ इन्हीं के अंदर ही था। ओके, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, हैरेडॉमर मॉडल प्राइमरीली फोकस्ड ऑन व्हाट? हैरेडॉमर मॉडल जिसमें सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है। सो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा अगर हम हैरेडॉमर मॉडल की बात करें? कैपिटल एक्यूमुलेशन growth. 17th, the integrated rural development program was launched to integrated rural development program. It was launched to provide self employment in रूरल एरियाज। ये प्लान हो आया था 1978 से 79 के बीच में, टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू रूरल एंड रूरल पुअर थ्रू क्रेडिट एंड सब्सिडी रिपोर्ट। ये हमने कल जब हम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम पढ़ रहे थे उसमें भी आया था। Then next is, which of the following statement is true regarding the zero-based budgeting? जीरो बेस्ड बजटिंग, जिसमें हर एक डिपार्टमेंट को जस्टिफाई करना पड़ता है और हर एक हमेशा स्क्रैच से अपना बजट प्रिपेयर करना पड़ता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, हाँ, द करेक्ट ऑप्शन इज ए। इट बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम द स्क्रैच, इवेल्युएटिंग द एक्सपेंसेस एनुअली। ओके, पिछले साल का क्वेश्चन लेके चलते हैं, हमेशा आगे का चलते हैं। ओके, so the correct option is A. It starts from the scratch, evaluating the expenses annually. 19th question. Employment guarantee scheme was introduced in which Indian state? It was Maharashtra. मनरेगा सबसे पहले महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया था इन द ईयर 1972। ओके, इसको एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम भी बोलते थे। 20th question. The 12th 5-year plan aimed at achieving the GDP growth at a rate of 8%. It focused on achieving the 8%. Okay, and इनका इनिशियली जो टारगेट था वो था 8.2%। ठीक है, 8 से 8.2%, और ये 8% तक कहीं ना कहीं पहुंच गए थे। ओके, सो ये तो थे आपके इकोनॉमिक, एक सेकेंड, इकोनॉमिक प्लानिंग के मेनली क्वेश्चंस। ऑलराइट, अब हाँ, इट वाज नॉट अचीव्ड, 8.2% था, 8% पे ही रुक गया था। अब है, ये है आपके आगे, इसमें आंसर कीज है। ठीक है, इसको तो मैं अभी एक बार स्टॉप कर रही हूँ और एक बार ना मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या कराया है मार्च के मंथ में, क्योंकि ये मार्च की मेरी लास्ट क्लास है। अब अप्रैल का मैं नया सिलेबस में स्टार्ट करूंगी। ओके, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होएगा। मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीक से जो आपकी क्लासेस हैं वो होंगी आपकी मेरे पास जो स्लॉट है
ठीक है, मेरे पास फ्राइडे का एंड सैटरडे का स्लॉट है। ठीक है, सिलेबस मैंने दे दिया है और मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले नेशनल इनकम स्टार्ट करूंगी। ठीक है, जो कि आपका प्रीलिम्स और मेंस में ज्यादा आता है। प्रीलिम्स में थोड़ा सा पोर्शन आता है उसका, तो उसमें जितना मेंस प्रीलिम्स में कवर होएगा वो भी कवर करूंगी और मेंस का भी कुछ पोर्शन में उसमें कवर कर दूंगी। ठीक है, अब जो मैंने इस मार्च के मंथ में जो जो कराया है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया था आपका जो ये सिलेबस था, ये मैंने स्टार्ट किया था फेब्रवरी के टाइम पीरियड पे। एंड मैंने इसमें फिस्कल प्लानिंग, इन्फ्लेशन, उसके बाद ग्रीन फाइनेंस, WTO, ब्रिक्स एंड जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए जैसे आपके IMF, वर्ल्ड बैंक, आपकी एनवायरमेंटल पॉलिसीज तो यहीं पे ही कवर हो जाती हैं, एनवायरमेंटल पॉलिसीज और ग्रीन फाइनेंस, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। और एक मैंने आज एक एक्स्ट्रा टॉपिक कराया है इकोनॉमिक प्लानिंग का। इन सबके नोट्स आपको टीचमेंट के ऊपर सारे मिल जाएंगे। ठीक है, इसकी आज एक टेस्ट सीरीज में अपलोड कर दूंगी क्लास प्लस के ऊपर। तो मेरे को एक बार मुझे इसमें बता दीजिए, मुझे बस एक बार आइडेंटिफाई करना है कि क्या आप लोग क्लास प्लस पे भी क्लासेस लेते हैं या सिर्फ यही टीचमेंट पे ही लेते हैं। मेरा तो सिर्फ टीचमेंट पे ही है। क्योंकि टेस्ट सीरीज में क्लास प्लस के ऊपर अपलोड करती हूँ। अगर आप कहोगे तो मैं साथ के साथ यहाँ इधर टीचमेंट पे भी अपलोड कर दूंगी। वैसे ज्यादातर हमें क्लास प्लस पे ही बोला जाता है वहां पे अपलोड करने के लिए। ओनली टीचमेंट। ठीक है, तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, इट्स ओके, मैं उनके लिए आज एक यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज अपलोड कर दूंगी जितना भी मैंने मार्च तक का करवाया है। ठीक है, उससे रिलेटेड। एंड उसमें आप चेक कर लीजिएगा आपके कितने ठीक होते हैं कितने नहीं होते हैं। एक हाँ, आप लोगों को ना प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ेगी। अपने सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं उनको एक्यूमुलेट करके खुद से सॉल्व कीजिए। ओके, एंड वन मोर थिंग, वन एम की जो वेबसाइट है वहां पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे के सारे नोट्स वहां पे भी अपलोड होते हैं। ओके, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये आपको टीचमेंट और वन एम की जो वेबसाइट है उधर भी मिल जाएंगे। सेकेंडली, हमेशा ना आपने प्रिपरेशन ऐसे करनी है जैसे आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो 10 में से 10 तो नहीं आएंगे एक ही दिन में। ठीक है, 10 में से हो सकता है आज आपने सिर्फ 2 ही आपके अच्छे से सॉल्व हो। ओके, और 8 रह जाए तो हार नहीं माननी है। नेक्स्ट डे आपने यू हैव टू मेक श्योर कि आपके 2 से ज्यादा आए, चाहे 3 आए लेकिन 2 से ज्यादा आने चाहिए। बेसिकली कंपटीशन खुद से रखना है, आस पड़ोस के बच्चों से नहीं रखना है। ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ अपने आप से कंपटीशन रख के ये चेक करना है कि आपके कितने आ रहे हैं और जो जितने प्रीवियस टेस्ट में आए थे उससे ज्यादा आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एक टेस्ट में 0 आए थे तो मेक श्योर करना कि आपके नेक्स्ट टेस्ट में 1 आए। मतलब नीचे नहीं जाना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी तो आपने अपनी फॉलो करनी ही करनी है। साथ के साथ जिनका प्रीलिम्स कब क्लियर हो जाता है उनके लिए एक एडवाइस है कि वो अपना मेंस की रिटन प्रैक्टिस स्टार्ट करें। ठीक है, मेंस के लिए जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के लिए आपके पास बुक रहेगी सिंघानिया की, उसको स्टार्ट करें। ठीक है, उसमें आपको पूरा फुल फ्लेज्ड मिल जाता है और नोट्स बनाने स्टार्ट करो अपने। ऑलराइट, आप में से है कोई जो मेंस के लिए हो इकोनॉमिक्स? एनीवन? सारे अभी प्रीलिम्स देंगे? ठीक है, प्रीलिम्स में आपको बेसिकली जनरल, ओके, एक सब्जेक्ट है आपका जनरल अवेयरनेस,
जनरल साइंस जो होती है, ओके, एंड करंट अफेयर्स और बाकी की इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इन सब में ये जितने भी टॉपिक है, ये सारे के सारे इनमें से किसी भी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आपको अपनी जो भी प्रिपरेशन करनी है इसके अकॉर्डिंगली करनी है। हमेशा ये मान के चलो कि आपने अपना प्रीलिम्स निकाल के मेंस तो देना ही देना है। ठीक है, आगे इंटरव्यू वगैरह का क्या होता है वो थोड़ा और दूर का फ्लैग है। पहले हम थोड़ा सा शॉर्ट रन गोल को चेक करते हैं। कम से कम मेंस तक तो पहुंचो, क्योंकि अगर आप मेंस तक भी पहुंच जाते हो तो कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है, और फिर आगे जाके आपका बाकी चीजों में इंटरेस्ट डेवलप होता है कि अगर मैंने मेंस तक भी कर दिया, इसका मतलब मैं अगर बाय चांस इंटरव्यू नहीं भी होता है तो कम से कम मैं बाकी एग्जाम्स क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, तो हार नहीं माननी है, इट्स ओके। हाँ, मेन मोटिव तो हमारा इंटरव्यू भी क्लियर करना ही है। ठीक है, तो जिनका मेंस भी क्लियर हो जाता है दैट इज वेरी नाइस, वो फिर अपना इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। एंड एक न्यूज़पेपर द हिंदू, इसकी तो हैबिट ही बना लो, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस में वैसे कम ही सजेस्ट करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये थोड़ा सा लेफ्टिस्ट है। इसमें ना एक ही लेफ्ट विंग की ही कॉलम्स वगैरह थोड़े ज्यादा आते हैं। हिंदू जो है वो न्यूट्रल है, वो दोनों साइड का आता है, वो लेफ्ट भी आता है राइट भी आता है। ओके, तो द हिंदू थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी वाला न्यूज़पेपर है। ठीक है, इसको स्टडी करें, अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, इंग्लिश के लिए आपको अपना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिटन वाली जो मेंस के लिए होती है और प्रीलिम्स वाली भी। ओके, एंड जितनी ग्रामर प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी करें। ठीक है, रेस्ट, बाकी आप में से किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। इसके बाद मैं अप्रैल से स्टार्ट करूंगी। एनीवन? ओके, सो अप्रैल में अब मैं जो जो कवर करने वाली हूँ वो मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक्स में मैं कवर करूंगी मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब मुझे जो सिलेबस कवर करना है वो अप्रैल से लेके 31 मई तक का करना है। ओके, एंड इसमें आ जाएगा आपका ग्रोथ डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस, ये सब आई विल बी एबल टू कवर। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी जिसमें प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस भी आएगा। ठीक है, और प्लानिंग इन इंडिया भी आएगा। जो भी मैंने ये सारे प्लान्स करे हैं ये दोबारा से डिटेल में होंगे। ठीक है, सारे के सारे। फिर बिजनेस साइकिल, इन्फ्लेशन, ये सब कुछ आएगा। इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, ये सब कुछ दोबारा से कवर होएगा। ओके, एक और मैम है रितिका मैम, उनकी क्लासेस में कवर होएगा सारा आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये क्लासेस जरूर लगाएं। सेकेंडली एक मेरे पास आपका हिस्ट्री भी है, मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री में सारा कवर होएगा जितना भी हमने नहीं कवर किया है मार्च के सिलेबस के टाइम पे। ठीक है, उसमें आ जाएंगे आपका मिडिवल किंगडम्स ऑफ डेक्कन एंड साउथ इंडिया, जिसमें वेस्टर्न चालुक्यास, होसला डायनेस्टी, अहोम डायनेस्टी सब कुछ आ जाएंगे। विजयनगर एम्पायर आ जाएगा, मुगल एम्पायर आ जाएगा, लेटर मुगल्स आ जाएंगे, और मूवमेंट्स आ जाएंगी सूफीज्म और इन सब की। ओके, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मंथ से फ्रेश मूड के साथ। ठीक है, समर्स आ गई हैं, आप ध्यान रखिए आप अपना। ओके, सो आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय देन।